Hello students, today I am going to tell you how you can solve your paper. As I know that you all are having some problems during solving the papers or having some problems during, as I have encountered it today during the computer test, as I have taken some file uploads in my test and so many students are having problem with that. So firstly I would tell you that in case of file upload, if it is not going to get it, तो इसका मतलब है कि there is some network problem. But if you are not knowing, then I will tell you how you have to do. So here we'll start with it. Firstly you will go to your WhatsApp where you have been getting the papers link. So here 7th A, I'm going to get it here. Maybe I have solved 7th B or 7th A, I don't know. Let's see, because I have solved one paper, so I'm not able to solve it once again. So here you can see this is my paper. I have to do the name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form, not niharika.tripathi space Lucknow. ठीक है, तो I will start it. First of all I will put my paper here, my email ID, and then I will do next. And if you are not going to give the correct email ID, you are not going to open your papers. So here enter your name, Niharika. Here my roll number. If some of the students are saying that they don't have the roll number, so let me tell you, if you don't have the roll number, okay, it's okay, give any of the number, because in case if you are not giving the number here, it is the required option here, so you have to give any number. If you don't know the number and the one of the subject teacher is asking for a roll number, then give it any of the random number between 30. So I will give my roll number 10 or any 29 or 30, whatever, but not more than 30, because I have given here some data validation. So I will do next and go to the paper. I will do here whatever the answer it is here, because the third question, it is because of just network issue, this option was wrong, so I will give the third answer as I have told all the students in their personal groups. The decimal conversion of 1, that is 20. Tag to display important text, strong. Tag that links to another, A. Tag does find M, attributes of image tag, SRC, alt सभी है, तो all of these correct answers. Then next I will do next. Here this is answer. I will write something whatever I know, because यहाँ पे तो टाइपिंग है, यहाँ पे भी टाइपिंग है. I will do whatever. ये तो आपको पता है, आप लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं. अब आती है बात इस वाले क्वेश्चन की. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे कि ऐड फाइल करना है. तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है कॉपी में, एंड यू हैव टू सॉल्व इट. एंड देन आफ्टर, एज लाइक यू आर मेकिंग पीडीएफ्स, जैसे आप पीडीएफ बना करके अपने टीचर्स को अपने नोट्स के भेजते हैं फॉर चेकिंग एज यू हैव कम्प्लीटेड और नॉट, और यू आर सेंडिंग पीडीएफ्स टू योर फ्रेंड. कैसे बनाते हैं पीडीएफ, ठीक उसी तरीके से पीडीएफ बनाना है. आप क्या करना है, आप पेपर को यहाँ से जैसे बैकग्राउंड में लेके जाते हैं, उसी तरीके से बैकग्राउंड में लेके जाइए. आपकी नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगी. पेपर बैकग्राउंड में ओपन है, ये देखिए. आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ क्रॉस लगा के कट मत करिए या स्लाइड मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा. आफ्टर स्टॉप योर मोबाइल, कीप इट असाइड. या क्वेश्चंस लिख लिए हैं, नहीं है तो क्वेश्चंस देख करके पहले सॉल्व कर लीजिए. देन आफ्टर इसको असाइड कर लीजिए. आप कैमरा ओपन कर लीजिए, जैसे आप करते हैं या डॉक्स जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए. मेरे पास यहाँ डॉक स्कैनर है, आप देख सकते हैं. ये देखिए, कैंडी क्रश, वर्ड के बगल में डॉक स्कैनर है, ये आप देख सकते हैं. ये देखिए डॉक स्कैनर, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो मैंने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए दिया है. आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत से स्कैनर होंगे, थ्रू आप पीडीएफ बनाते होंगे और अपने टीचर्स से आपको अपने पीडीएफ्स बनाए हैं, तो आप उन पीडीएफ्स को बनाइए और बना के सेव कर लीजिए. जैसे आप लोग सेव करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको सेव करना है. कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है.
आपको ये पता होगा कि आप पीडीएफ बना के सीधे उठा करके अपने फ्रेंड्स को सेंड कर देते हैं या अपने टीचर को सेंड करते हैं, ऐसा ही करते होंगे, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक सेव करना नहीं सीखा है तो इट्स ओके। अगर आप सेव करना नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, आप उसे उठा करके सेंड तो करना जानते हैं ना, तो सेंड आप अपने घर में ही किसी व्यक्ति को कर दीजिए। एज़ फॉर एग्जांपल मैंने बनाया और अपने भाई को सेंड कर दिया। अब आप टीचर को सेंड करते ना, उस जगह आप अपने भाई को सेंड कर दीजिए, अपनी बहन को, अपने मम्मी पापा, किसी को भी सेंड कर दीजिए। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी जगह सेंड कर दीजिए, बशर्ते वो आपका दोस्त ना हो, बशर्ते वो आपका दोस्त ना हो कि आपका क्लासमेट हो। ऐसा नहीं मत करिएगा आप के किसी, क्योंकि वो आप अपने क्लासमेट को सेंड करेंगे तो उससे होगा क्या, वो लिख लेगा आंसर्स और आपके आंसर्स के बराबर। क्या तो आप ये चाहेंगे कि आपके बराबर हो जाए? क्या आप चीट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना, तो अपने फ्रेंड्स को मत दीजिए, चाहे कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो। ये हमारी बात मानिएगा। आप अपने घर में किसी को सेंड कर दीजिएगा और सेंड करके उसे सेव कर लीजिएगा। देन आफ्टर, एज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी को सेंड कर दिया अपने घर में किसी को, तो वो जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अपलोड करना है। तो चलिए आपका, अब हम ये मान लेते हैं कि आपका पीडीएफ बन के रेडी है, मतलब तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और पीडीएफ इज़ रेडी नाउ फॉर अपलोडिंग। सो हियर, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दिस स्टेप इज़ वेरी मैंडेटरी। यहाँ ऐड फाइल्स आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये ऐड फाइल्स नज़र आ रही हैं, ये बहुत बड़ा मैंने कर दिया इसीलिए आप ताकि देख सकें। ऐड फाइल्स नज़र आ रही है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम सीधे यहाँ चले जाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। ये अपलोड के ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इमेज अपलोडिंग बंद कर रखा है। तो जो बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि मैम आई कैन नॉट अपलोड, आई कैन नॉट अपलोड, अपलोड का ऑप्शन तो है ही नहीं। अरे तो गो थ्रू द ऑप्शन व्हाट इज़ बीइंग शोन टू यू, तो जो इनेबल है वो ऑप्शन पे जाइए ना, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, मतलब अपने डिवाइस से फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो क्यों आपको सबसे पहले कैमरा दिखता है? कैमरा ही क्यों दिखता है? कैमरा से पिक्चर्स खींच सकते हैं। जब मैंने इमेज को वहाँ पे नहीं रखा है तो आप इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं? तो जब इमेज ऑप्शन है ही नहीं है तो काम ख़त्म। फाइल्स ले लीजिए। तो ये जो फाइल आप लोगों को दिख रही है, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, हम क्लिक करेंगे, फाइल्स पे जाएंगे और फाइल्स पे जाते ही ये आपको आपके मोबाइल के डिवाइस के फाइल्स पे लेके चला जाएगा। आप कुछ बच्चे कंप्यूटर पे सॉल्व करते होंगे, भाई जाहिर सी बात है उनके पास कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर पे उस केस में हम क्या करेंगे? तो कंप्यूटर पे जाहिर सी बात है हमारे पास वो स्कैनर या पीडीएफ फाइल हम या तो अपनी ईमेल पे भेजें, तो साइड में हम अपना मेल खोल के रखें। देखिए हम आपको 2 ऑप्शंस बता रहे हैं कैसे करना है। मोबाइल से आप अपना, जैसे कुछ बच्चे जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए है, वो क्या करेंगे, वो अपने मोबाइल से फटाफट पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ को बना करके अपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो पहली बात तो उनके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, दूसरी बात वो चाहें तो अपने मेल पे भी, क्योंकि फ़ाइल को हम मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। तो आप अपना ईमेल आईडी खोल करके अलग से जीमेल ईमेल खोलना, मैं फिर से 2 बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए, ईमेल खोल लीजिए और ईमेल खोल के आप ओपन करके ईमेल पे और अपने फाइल्स को उस पर सेंड कर दीजिए। जो भी पीडीएफ फाइल बनाई है उस पीडीएफ, तो जो ईमेल पे भेजने का तरीका है वो सिर्फ आपको पता ही होगा कि कैसे मेल पे फाइल भेजते हैं। तो अभी से ही चेक कर लीजिए और अभी से ही उसको सीख लीजिए कि कैसे हम ईमेल पे अपने पीडीएफ को भेजेंगे। तो ये काम अपना कर लीजिए और अपने घर में किसी से हेल्प ले लीजिए और आगे फिर हम बताते हैं। तो जब आप ईमेल पे ओपन कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर पे आपका एक दूसरे टैब ओपन कीजिए और टैब पे अपना ईमेल ओपन कर लीजिए, क्योंकि एक टैब पे आप गूगल मीट के थ्रू पेपर ओपन करके सॉल्व कर रहे होंगे गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे। तो उसी ब्राउज़र की एक और टैब खोल के वहाँ पे अपना जीमेल ओपन कर लीजिए और जीमेल ओपन करते ही जिस पीडीएफ को आपने भेजा होगा वो वहाँ पे होगा। अगर जीमेल ओपन करना नहीं आता है तो व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपने व्हाट्सएप को कंप्यूटर से सिंक कर लीजिए। तो जिस भी व्हाट्सएप के नंबर पे आपने अपने घर वालों में किसी को भी पीडीएफ भेजा होगा, वहाँ से वो पीडीएफ वहाँ पे से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाके सेव हो जाएगा। फिर आप वहाँ से उसे उठा सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपने उसे सेव किया। वैसे भी मैं बता दूं, अगर आप उसे कोई डेस्टिनेशन फोल्डर नहीं देते हैं तो वो जा कर के आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं। अब जैसे हमें अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है
तो उस कंडीशन में हमारे पास PDF, जैसे ये PDF है कॉपी ऑफ कंप्यूटर 6B, एक ही PDF है हमारे पास, ऐसे ही करके हमारे पास PDF सेफ रहेगा। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इस PDF को अपलोड कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा PDF अपलोड। ये देखिए कॉपी ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से हमारा अपलोड हो गया PDF। और अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए, बस अब ये अपलोड हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अब गलती से मान लीजिए कोई गलत फाइल अपलोड हो गई, तो इस कंडीशन में यहाँ क्रॉस ऑप्शन बना है, हम क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करते ही वो फाइल, ये देखिए हमने क्रॉस कर दिया, तो फिर से हमें ऐड फाइल के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। हम दोबारा से फाइल अपलोड कर, मान लीजिए गलती ही है, गलती हो गई तो अपलोड हो गया गलती से, तो उस कंडीशन में वहाँ से क्रॉस कर देंगे और फिर से ऐड फाइल पे जाएंगे, फिर उसी तरीके से सेव कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे फाइनल। तो थैंक यू, ये आज के लिए। अगर कोई क्वेरीज हैं तो हम फिर और बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, टुडे आई विल टेल यू हाउ to download your PDF from the doc scanner application. So this doc scanner application you can see here, this is what doc scanner, ये देखिए, this is the doc scanner. तो this I have downloaded from the Play Store. तो you can also download it if you have the any other doc scanner document scanner application, तो you can use that also. but मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अगर हम PDF बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। फिर फ़ोटोज़ क्लिक किया, फ़ोटोज़ को मैंने वहाँ लिया और मैंने PDF बना लिया। अब जो PDF हम बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम किसी को सेंड कर देते हैं। तो वो हम उसको सेंड कर देते हैं, हमारे में वो सेव नहीं होता, उसको चला जाता है। तो उस कंडीशन में कैसे हम करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं, और कैसे ही हम बिना सेंड किए भी अपलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, और सेव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी पिक्स मैंने सेलेक्ट करके रखी थी PDF बनाने के लिए, तो मैं इनका PDF बनाती हूँ। ये देखिए मैंने PDF बना लिया। अब आप क्या करते हैं, जब ये PDF बनता है तो आप सीधे सेंड फाइल कर देते हैं और काम ख़त्म। अपने किसी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में अपने टीचर या किसी भी बच्चे को, जिसको भी आपको देना, आप दे देते हैं। बट हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन होगा आपको डाउनलोड का। फिर से बताती हूँ, ये 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक कीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस डाउनलोड को डाउनलोड कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब ये गया कहाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम फिर से बैक कर जाएंगे और फिर हम अपने एप्लीकेशंस में जाएंगे। हम कैसे जाने कि कहाँ पे है, ये तो अलग बात है कि वहाँ पे तो वो हमें डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा फाइल्स में ही, लेकिन हम कैसे जाने कि कहाँ पे है। तो फाइल्स, ये देखिए फाइल्स, हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस के फाइल्स में जाएंगे और फाइल्स में ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स पहले से, क्योंकि एक मैंने पहले स्कैन वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखा था और एक ये अभी बनाया है। ये देखिए वही तो डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी बनाया। तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये हमने यहाँ से बना लिया और ये हमारा अब सेव हो गया। अब जो हम अब हम आपको बताएंगे कैसे हमने, अगर किसी को बाय द वे सेंड कर दिया है तो हमें नहीं पता डाउनलोड करना और हमने सेंड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं बनाना आता है, वहाँ डाउनलोड करना या कुछ ऐसा नहीं आता है, जबकि सिंपल प्रोसेस है। बट अगर नहीं आता है तो उस केस में आप यहाँ से और ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक PDF सेंड किया था, ये इस PDF पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारा। अब डाउनलोड हो गया तो हम फिर से दोबारा चलते हैं, वही फाइल्स में आपको दिखाते हैं। 2 था ना, अब तीसरा भी हो गया होगा। ये देखिए फाइल्स, ये देखिए ये हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स है, PDF। पहले 2 ही थे, अब 3 हो गए। तो मतलब है कि हम व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब है कि हम जब सेंड करने के लिए, जब हम बना रहे होते हैं उस वक्त भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। जब PDF बन के हमको दिखता है तो वहाँ पे भी 3 डॉट्स आते हैं, 3 डॉट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। तो ये हमारा है। इसके बाद फिर हम आपको चलते हैं कैसे करना है, अब वो भी दिखाते हैं। फिर से मान लीजिए हमारा ये पेपर है, ठीक है, ये रहा हमारा पेपर। हम ऐड फाइल्स में गए, सेलेक्ट फाइल में गए, फाइल्स में गए, डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया। ये देखिए हमारा अपलोड हो गया, क्योंकि बहुत ही छोटा फाइल था तो अपलोड हो गया। हम इसे फटाफट, ये देखिए मुश्किल से KBs में फ़ाइल होती है ना, आपकी टीचर प्रॉब्लम में आएगी ना कोई, और फिर हम सबमिट कर देंगे, काम ख़त्म, हमारा पेपर डन। अब आता है वेरीफाई का ऑप्शन। कैसे हम वेरीफाई करेंगे उस कंडीशन में, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद ब्रिजेस। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें ब्रिजेस दिख रही हैं हम वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
तो ब्रिज हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है ब्रिज, ब्रिज ये रहा ब्रिज, ये रहा ब्रिज। ब्रिज जहाँ पे भी हमें दिखेगा हमें वहाँ पे ही उसे ले लेना होगा और वेरीफाई कर देना। मुश्किल से 3 पिक्चर्स होती हैं जिसे हमें वेरीफाई करनी होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये देखिए योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, बस काम खत्म। दैट इज़ टू बी डन, दिस इज़ द ओनली थिंग फॉर विच यू आर मेकिंग क्योर्स फॉर योर टीचर्स। आप अपने टीचर्स को परेशान करते हैं, बार बार मैसेजेस करते हैं, आप ये नहीं सोच पाते हैं कि वो जितने मैसेजेस आप करते हैं उससे आपका टीचर क्या होता है, उससे टीचर की मोबाइल हैंग हो जाती है। आप पर्सनली उसको एक एक नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, एक एक नंबर से मैसेज करते हैं, आप 30s के काउंट में हैं और उसके बाद 30s मैसेजेस आ जाएंगे, तो वो कहाँ से आपको मैसेजेस देखेगी और कहाँ से आपको रिप्लाई करेगी। तो इस कंडीशन में आपको भी सोचना चाहिए कि क्या है, थोड़ा सा पैनिक मत होइए, आराम से करिए, इसीलिए इतना टेस्ट लिए जा रहे हैं, मैं फिर से लूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर सो मच। अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे हम देख सकते हैं। थैंक यू।